અરુણ તિવારી, જેઓએ લેજેન્ડરી ડોક્ટર એપીજે અબ્દુલ કલામ આઝાદ સાથે ઘણું કામ કરી ચૂક્યા છે, આવા વક્તાઓને ચેમ્બરના વેબિનારમાં આમંત્રણ આપી આપણે ખૂબ જ ગૌરવ અનુભવીએ છીએ. તો ચાલો ચેમ્બરને આ વેબિનારની અંદર ચેમ્બરના લીડર, જેઓ ઉત્સાહી, ખંતીલા, વિશ્વાસુ, જાણીતા અને સૌને સાથે લઈ ચાલનારા શ્રી દિનેશભાઈ નાવડિયાને વિનંતી કરીશ કે તેઓ આવકાર પ્રવચનથી વેબિનારમાં પધારેલ વક્તા અને શ્રોતાગણને આવકારે. દિનેશભાઈ. નમસ્કાર મિત્રો, આજે એચજીસીસીઆઈ ના મારફતે કોવિડ-19 ની જે પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ છે એને ધ્યાનમાં રાખીને અમારા ચેમ્બરના એક્ટિવ મેમ્બર અને કમિટી મેમ્બર એવા સંજયભાઈ પંજાબી, મૃણાલભાઈ શુક્લાના મારફતે અને અમારા પ્રમુખ શ્રી કેતનભાઈ દેસાઈના માર્ગદર્શન નીચે આજે આ વેબ સેમિનાર 96 ની અંદર જે આપણે આજે માર્ગદર્શન લેવાના છે એમાં ખાસ કરીને પોસ્ટ કોરોના વાયરસ ન્યૂ વર્લ્ડ ઓર્ડરના પરિસ્થિતિ અંગેનો આજનો આ સેમિનારની અંદર આજના આપણા વક્તા અને માર્ગદર્શન આપવાના છે એવા પ્રોફેસર અરુણભાઈ તિવારી તેમજ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સના મારા તમામ સભ્યો અને પાર્ટિસિપન્ટ. આપણે સૌ જાણીએ છીએ કોવિડ-19 ના કારણે દુનિયાની દરેક બિઝનેસની સિસ્ટમ અને એકબીજા સાથેના વેપારોમાં ખૂબ મોટું પરિવર્તન આવ્યું છે. આજે ભારતની આપણે વાત કરીએ, ભારત આવડી મોટી વિશાળ સંખ્યાની અંદર ઉદ્યોગ સાથે લોકો જોડાયેલા છે, ત્યારે આપણે અમુક કન્ટ્રીઓના આધાર ઉપર રો મટીરિયલ માટે એની ટેકનિકલ એજ્યુકેશન એનો સપોર્ટ ને બધું લેવું પડતું હોય છે. પરંતુ આ કોવિડ-19 ના કારણે જ્યારે આવી ઓપોર્ચ્યુનિટી સારી ઊભી થઈ હોય અને ખાસ કરીને ભારતના વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીનો જે એક કોન્સેપ્ટ છે, એમની જે એક મહત્વાકાંક્ષા છે કે આ પરિસ્થિતિમાં આપણે કઈ રીતના પોઝિટિવની અંદર પરિવર્તન કરીને એમનો લાભ લઈ શકીએ. હું ડાયમંડ ઇન્ડસ્ટ્રીને એક એક્ઝામ્પલ આપીને કોવિડ-19 ની અંદર શું ઓપોર્ચ્યુનિટી મળી છે એનું એક્ઝામ્પલ આપું છું. આજની પરિસ્થિતિમાં ભારતની અંદર જે કઈ ડાયમંડ ઇન્ડસ્ટ્રી આપણે લેબર વર્ક જ કરીએ છીએ અને $24 બિલિયન નું આપણું એક્સપોર્ટ છે. પરંતુ વેલ્યુ એડિશનની જો આપણે વાત કરીએ તો વેલ્યુ એડિશનની અંદર આજે હોંગકોંગ અને ચાઇનામાં 42% માલ આપણે અહીંથી એક્સપોર્ટ કરીએ છીએ. ફક્ત ને ફક્ત ડાયમંડ જ્વેલરી બનાવીને એ લોકો એક્સપોર્ટ કરી દે છે ત્યાંથી. પરંતુ વૈશ્વિક વેપારિક સંબંધોના પરિવર્તનના કારણે અમેરિકાએ આજે ચાઇના મેડ પ્રોડક્ટ ઉપર 7.5% ટેક્સ એડ કરતા એટલે 16 થી 17% ડાયમંડ જ્વેલરી ઉપર અત્યારે ટેક્સ લાગ્યો. એની સીધી ઓપોર્ચ્યુનિટી ભારતના ડાયમંડ જ્વેલરી મેન્યુફેક્ચરરોને મળશે. આજે ભારતની અંદર 6.5% ડ્યુટી છે અને એના કારણે જે અમેરિકાના જે ઓર્ડરો હોંગકોંગ અને ચાઇનાની અંદર થતા હતા એનો ડાયરેક્ટ બેનિફિટ હવે ભારતના ઉદ્યોગપતિઓને મળશે. એ જ રીતના દક્ષિણ ગુજરાતની, સાઉથ ગુજરાત, દક્ષિણ ગુજરાતની જો આપણે વાત કરીએ તો ટેક્સટાઇલની અંદર પણ એટલી સારી ઓપોર્ચ્યુનિટી અત્યારે આપણે સૌ જોઈ રહ્યા છીએ. કોવિડ-19 ના કારણે ચાઇનાનું જે ટેક્સટાઇલ માર્કેટનું જેની પકડ હતી વિશ્વ ઉપર, સેકન્ડ નંબરે જો કોઈ હોય તો ભારત છે અને એમાં ખાસ કરીને ગુજરાત, એમાં ખાસ કરીને સુરત અને દક્ષિણ ગુજરાતની અંદર જે પ્રમાણે ટેક્સટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રીનું પ્રભુત્વ છે એનો પણ આપણે વૈશ્વિક બજારનો લાભ લઈ શકીએ એવી સ્થિતિમાં છીએ. વધારે નહીં કહેતા, આજે આપણી સાથે અરુણભાઈ તિવારી કે જેઓ ખૂબ નોલેજેબલ છે અને જે કઈ પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ છે એમાં નાનામાં નાનો વેપારી અને મોટામાં મોટો વેપારી કઈ રીતના પરિસ્થિતિનો લાભ લઈ શકે અને મને ચોક્કસ ખાતરી છે કે આપના માર્ગદર્શનના કારણે સાઉથ ગુજરાતની અંદર જે લોકો ઇન્ડસ્ટ્રી પોતાની એસએમઈ સેક્ટર કે મોટા લાર્જ યુનિટમાં કામ કરે છે અને સ્ટાર્ટઅપમાં ખાસ કરીને જે સ્ટાર્ટઅપની અંદર કામ કરી રહ્યા છે જે મિત્રો, એમનું આજનું આપનું માર્ગદર્શન ખૂબ ઉપયોગી થશે અને આ પરિસ્થિતિને આપણે એક શુભ પ્રસંગમાં કઈ રીતના ફેરવી શકીએ એ માર્ગદર્શન લીધા પછી આપણા સૌના હાથમાં છે. અને એસજીસીઆઈ ના મારફતે હર હંમેશા અલગ અલગ વેબિનારના માધ્યમથી આપ સૌ મિત્રોને માર્ગદર્શન આપતા રહેશું. ફરી આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. ચેમ્બર. खूब खूब आभार दिनेश भाई। प्रोफेसर अरुण तिवारी जी, आपका भी चैम्बर में खूब स्वागत है
और जब मैं कोई भी लाइब्रेरी का बैकड्रॉप देखता हूँ तो मुझे काफी अच्छा लगता है कि इतनी सारी पुस्तकों के बीच में अगर हम बैठते हैं तो जी। ज्ञान के स्तोत्र के साथ बैठना खूब अच्छा लगता है। हमारे बीच में उपस्थित है चैम्बर के युवा लीडर निखिल मद्रासी जी, और साथ में इस प्रोग्राम को मॉडरेट करने के लिए डॉक्टर नीरव मंदिर भी हमारे साथ उपस्थित है। और मैं नीरव मंदिर से गुजारिश करूंगा कि ये वेबिनार के लिए आगे की सफर हमें यहाँ से आपके पुस्तक का रसास्वाद कराने के लिए नीरव मंदिर जी हमें आगे बढ़ाए। धन्यवाद भाई साहब। अनम्यूट कर दो। I'm audible right now? हाँ। Thank you very much संजय भाई, दिनेश भाई नावड़िया जी, निखिल भाई, मैं चेंबर की ओर से once again I'm heartily welcoming प्रोफेसर अरुण तिवारी सर। संजय भाई, आपने इस मॉडरेशन के जो संचार है मेरे हाथ में सौंप के, और ये जो आपने इंट्रोडक्शन की बात है तिवारी साहब का, तो मुझे थोड़ा दुविधा में डाल दिया। दुविधा की बात इसलिए है कि जैसे महाभारत में पांडव और पांडवों में भी सबसे छोटा सहदेव, अगर सहदेव को बोला जाए कि आपको द्रोणाचार्य का इंट्रोडक्शन देना है, तो आज कई ऐसी परिस्थिति का निर्माण हुआ है कि छोटा मुंह बड़ी बात, और तिवारी साहब हैज बीन ऑलवेज बीन अ मेंटर, गुरु, गाइड, और उनका इंट्रोडक्शन तो मैं क्या दे सकता हूं, लेकिन तिवारी साहब की जो पर्सनालिटी है, उनका जो ऑरा है, which doesn't require any kind of introduction, but for those who are joining in this webinar, उनके अप्रेजल के लिए मैं बताऊं कि तिवारी साहब जो हैं is a missile scientist turned into a teacher and an author, recognized as a pupil of Dr. APJ अब्दुल कलाम सर। कलाम साहब के साथ लगभग 3 दशकों से ज्यादा रहने का साहब को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जैसे हमने रिसेंटली कलाम साहब की पुण्यतिथि भी सेलिब्रेट की 27 जुलाई को, तो तभी भी साहब ने स्पेशल एक लेक्चर में कलाम साहब के आदर्शों पे काफी गहन चर्चा की थी। साहब ने कलाम साहब के साथ करीबन 5 बुक्स लिखी है, जिसमें से सबसे फेमस बुक है विंग्स ऑफ फायर, जिसकी करीबन 20 लाख कॉपीज पूरे वर्ल्ड में अभी तक सेल ऑफ हो चुकी है। और उससे बढ़ के भी कलाम साहब के साथ उनकी डिमाइस के बाद उन्होंने एक बुक लिखी, अ लाइफ आफ्टर डॉक्टर कलाम्स डेथ, जिसको काफी सराहना मिली इंडिया में, वर्ल्ड में। प्रोफेसर तिवारी जो हैं वो 1980s से लेके एरोनॉटिकल ग्रेड एल्यूमिनियम अलॉयज और टाइटेनियम एयर बॉटल्स का उन्होंने निर्माण किया डीआरडीओ के अंदर, और तभी कलाम साहब के साथ तब से वो जुड़े हुए थे। उन्होंने कलाम राजू स्टंट में भी अपना काफी योगदान दिया। जो कलाम साहब का विजन था कि इंडिया के अंदर सबसे सस्ती और क्वालिटी के साथ एक स्टंट का निर्माण किया जाए, तो उसमें भी साहब का योगदान काफी काबिले तारीफ रहा। तिवारी साहब प्लेटिनम जुबली मेंबर हैं CSIR में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी में, और साहब जो है अपना जो ज्ञान है वो बच्चों के बीच में भी एज अ एडजंक्ट प्रोफेसर हैदराबाद यूनिवर्सिटी में एज अ फैकल्टी पढ़ाते हैं। तो आज ऐसे व्यक्तित्व का हमें समय प्राप्त हुआ है, तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच सर कि आप इस अपना कीमती समय आपने चेंबर को दिया। और आपकी जो रिसेंट बुक है जो अभी जुलाई में रिलीज हुई है, इंडिया वेक्स, तो उसके ऊपर सर आपका विजन जानना चाहेंगे, और उसके ऊपर जानना चाहेंगे कि जो बुक है वो बुक इंडिया वेक्स, उसका विचार, क्योंकि जब हम कोई भी चीज करते हैं तो एक क्वेश्चन पूछना काफी जरूरी बनता है कि व्हाई वी आर डूइंग इट। ये जो बुक इंडिया वेक्स है, काफी आपने बुक्स लिखी है, लेकिन ये इंडिया वेक्स के ऊपर जहां पे आपने इंडिया, चाइना और यूएस के ट्रेड रिलेशंस की बात की है, तो वो जो बुक का विचार आपके मन में कैसे आया? और आप हमेशा से कलाम साहब के काफी खास और करीबी माने जाते हैं, और जो बुक पे अगर आप देखें तो को ऑथर मिस्टर बार्ट फिशर, तो उसमें जानना चाहेंगे कि सर ये संगम कैसे हुआ इंडिया और यूएस का, तो उसमें अगर आप ये सेशन की शुरुआत करें सर। थैंक यू वेरी मच सर। धन्यवाद नीरव। मेरा बहुत बहुत सौभाग्य है कि
आप सबके सामने बात करने का मौका मिला। और मेरा शुरू से ये मानना है कि इस पूरे संसार में कुछ भी बिना कारण के नहीं होता, और एक अदृश्य शक्ति है जो पूरा संसार चलाती है। और वो लोग जो मैं होता है, अहंकार होता है, अगर वो उससे थोड़ा सा फ्री हो जाते हैं तो फिर वो शक्ति जो है उनके ऊपर काम करना शुरू कर देती है। ऐसा मेरा अपना अनुभव रहा है। तो जब कलाम साहब 2015 में चले गए तो मैंने सोचा कि अब 33 साल तक मैंने उनके साथ काम किया है, तो अब और किसी के साथ काम करने की ना जरूरत है ना शोभा देता है। तो मैं अपना जो वक्त है वो, मेरा स्वास्थ्य भी पिछले दिनों 1 साल से ठीक नहीं चल रहा था, घर में रहता था और जो धार्मिक किताबें हैं, गीता रहस्य है लोकमान्य तिलक की, महाराज की, और इन सबको यंग बच्चों को कैसे एक्सप्लेन करना है, इसके ऊपर मेरा पूरा ध्यान रहता था। तो पिछले साल अगस्त के महीने में पता नहीं, एक बड़ी कॉम्प्लेक्स, जैसे सप्लाई चेन होती है उस तरह से एक रेफरेंस चेन होती है, उसने उसे बताया, उसने उससे बताया। तो एक ये बार्ट फिशर साहब मेरे से घर पे मिलने आए। तो गोरा इंसान है, विद्वान है। तो जब मैं जब मैं इंटरमीडिएट पढ़ता हूँ, उन्होंने जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी से पीएचडी करी थी इंटरनेशनल रिलेशंस में, और वाशिंगटन डीसी में वो इंटरनेशनल ट्रेड अटॉर्नी है। तो वो आए, मुझे नहीं पता। तो उन्होंने एक बात कही मेरे से, और ये कहा कि पॉलिटिकल लेवल पे अभी ये बात बाहर बाद में निकल के आएगी, लेकिन बिजनेस लेवल पे चाइना और अमेरिका की डीकपलिंग होने वाली। उसने यही मुझे बताया, डीकपलिंग होने वाली है। अब मैं तो इंजीनियर आदमी हूं, तो मेरी समझ में ये बात तो आ गई ये क्या होने वाला है। फिर उसने ये बताया कि अब अमेरिका जो है वो तो बहुत बड़ी पैसा बनाने की मशीन है, तो अगर हम अपना प्लग जो है वो चाइना में से निकाल लेंगे तो हमें कहीं और लगाना पड़ेगा। तो विचार इस बात के ऊपर चल रहा है कि क्या वो इंडिया हो सकता है, क्या अमेरिका इंडिया की तरफ चाइना से अपना प्लग निकाल के इंडिया में लगा सकता है। तो इस बात के ऊपर मैं चर्चा करने आया हूँ, और मैं बहुत लोगों से मिला यहाँ पर, और तब मुझे बताया गया कि मैं आपसे भी आके मिलूं, तो आप मेरी मदद करोगे क्या ये किताब लिखने में। तो मुझे कुछ ऐसा लगा कि जैसे मैंने शुरू में बताया कि अदृश्य शक्ति है वो पूरी दुनिया चलाती है। तो मैंने सोचा कि इतना मेरे से ज्यादा पढ़ा लिखा, मेरे से ज्यादा सीनियर कुछ है तो मैं ना कहने वाला कौन सा हूँ। तो मैंने बिल्कुल सहज, मैंने कहा सर लिखेंगे, आपके साथ बिल्कुल लिखेंगे। तो उसके बाद इसी कमरे में जहां से मैं आप बात कर रहा हूँ, उसने बताया कि मैं आज 10 साल बाद इंडिया आया हूँ, और इन 10 साल में टाइटल भी वही डिस्क गया, इंडिया वेक्स। तो अब एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा मैं कि इंडिया वेक्स लिखा हमने ये नहीं लिखा इंडिया अवेकन, हमने ये नहीं लिखा इंडिया हैज रिजन। क्योंकि आप सबको ये अनुभव होगा कि जब सवेरे आंख खुलती हैं तो उसके बाद कौन वर्जिश करने जाएगा, कौन चादर ओढ़ के दोबारा सो जाएगा, कौन जो है वो चाय के लिए ऑर्डर करेगा, ये सब अलग अलग लोगों की अलग अलग होती हैं। तो नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री हैं, कोशिश कर रहे हैं, देश को बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये देश आगे बढ़ पाएगा या नहीं, इसके बारे में तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो इसलिए हमने इसका टाइटल इंडिया वेक्स रखा कि भाई उठ तो गए हैं हम लोग, अब आगे क्या होगा इसके बारे में एक पूरा फ्रेमवर्क बना के सबके सामने रखा जाए। तो
तो उसने कि चाइना को चाइना बनाने में अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ है। 1990 तक वहां गरीबी थी, 50 तरह की प्रॉब्लम्स थी। तो बिल क्लिंटन साहब ने जब चाइना को WTO के अंदर शामिल कर दिया, और उसके बाद जो फॉर्च्यून 500 की कंपनियां हैं उन सब ने अपनी फैक्ट्रियां चाइना के अंदर शिफ्ट कर दी। तो वो तो व्यापारी लोग हैं, बॉटम लाइन उसको चाहिए उनको, तो बॉटम लाइन इंप्रूव हो गई, उनकी प्रॉफिट इंप्रूव हो गया। और कुछ अमेरिका के अंदर फ्रीडम इतनी है कि एप्पल कंपनी के $1 ट्रिलियन तो वो वापिस ही नहीं लाए कभी अमेरिका में, वो किसी आइलैंड के अंदर बिना टैक्स दिए हुए पड़े हुए हैं। तो हर एक आदमी ने पूरा फायदा उठाया। तो इस चक्कर में चाइना के पास बेइंतहा दौलत आ गई, और क्योंकि उनका सारा सामान अमेरिका का, उनकी फैक्ट्रियां चीन में लग गई थी, तो उन्होंने वो सब सीख लिया। अब उसको आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की चोरी कर ली, या मैं उस तरह के वर्ड यूज नहीं करना चाहता, इतना बेवकूफ तो कोई भी नहीं है कि आपकी फैक्ट्री में कुछ काम हो रहा है और हम उससे सीख ना पाए। तो उन्होंने सब सीख लिया। अब उसके बाद जो 2012 में शी जिनपिंग साहब जब राष्ट्रपति बने, तो उनकी सोच थोड़ा अलग तरह की है। तो उन्होंने जो है एक चाइना को वर्ल्ड पावर बनाने का उन्होंने एक कल्पना करी। तो उस कल्पना के चलते हुए थोड़ी सी परेशानियां आनी शुरू हो गई। तो जब तक बराक ओबामा साहब राष्ट्रपति रहे, तब तक तो वो बड़े डिसेंट आदमी हैं, वो थोड़ा परेशानी थी मगर उसको डिस्कशन में नहीं आती थी। लेकिन जब हमारे डोनाल्ड ट्रंप आए, वो तो बिंदास आदमी हैं, तो वो सारी जो परेशानियां थी वो पब्लिक स्पेस में आनी शुरू हो गई, और लोगों ने ये पूछना शुरू करा कि भाई ये क्या हो रहा है। तो फिर उसके बाद ड्यूटी लगनी शुरू हुई, कस्टम ड्यूटी लगी, काफी बड़ी बड़ी कस्टम ड्यूटी लगी। तो जो बार्ट फिशर साहब बता रहे थे वो सचमुच में होने लगा। हमने तो किताब लिख रहे थे, 200-300 पेज लिख चुके थे। अब उसके बाद ये कोरोना वायरस जो आया, तो उसके बाद जो हो रहा था वो और तेजी से होने लगा, कि जो बात और 6 महीने साल भर लगते जिसको, वो महीने 2 महीने में पूरी हो गई। और गाली गलौज शुरू हो गई, ओपनली एक दूसरे को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। और अब तो एकदम कोल्ड वार वाला माहौल देश के पूरे विश्व के अंदर बन चुका है। तो अब समस्या ये है कि भारत क्या करे। तो क्या हम दोबारा से वो गुट निरपेक्ष वाला भगत बन के बैठ जाएं वहां पर, या हम अमेरिका के साथ खड़े हों, या हम चाइना का मुकाबला करें पूरी शक्ति के साथ, या हम शांति दूत बन के सबका एक दूसरे से मेल मिलाप कराएं। तो ये सारी इस समय हमारे सामने परिस्थितियां हैं। सबसे बड़ी बात, जो किताब 500 पेज की हमने लिखी है जिसमें 25 चैप्टर हैं, हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो कोई एक लीडर डिसाइड कर लेगा या कोई एक ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड कर लेगा। ये सारी चीजें बड़ी जटिल होती हैं, और जैसे एक बीज को पेड़ बनने में 10-12 साल लगते हैं, उसी तरह से एक विचार को आगे बढ़ाने के अंदर टाइम लगता है। तो जो भी इस समय डिसीजन लिए जाएंगे, उसके द्वारा ये डिसाइड होगा आगे जाके कि भारत की जो आने वाली पीढ़ियां हैं, आने वाले जो बिजनेस हैं, आज के जो स्टार्टअप हैं, वो कल की मल्टीनेशनल कंपनी बने या ना बने, या हम खाली इंपोर्ट करके सब चीजें लेके हम उनका बाजार बन के रह जाएं। तो ये सारी चीजें सोचने की है। और जब हम किताब प्रेस में भेज रहे थे, तो वो लद्दाख वाला कांड हो गया। तो हमारे दिमाग में जो थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन था, वो भी दूर हो गया कि हम यहाँ कोरोना से लड़ने के ऊपर परेशान है, हर एक आदमी लॉकअप है, ये करना है, लॉकआउट निकालना है, और वहां आपने जो है वो रातों रात हमारी सीमा में घुस के बाउंड्री लाइन ही चेंज कर दी। तो ये जो अविश्वास की भावना है, इसके साथ सबको मिलके क्या करेक्ट डिसीजन है जो लिया जाए। और दूसरी लास्ट बात मैं कहूंगा इस सवाल के आखिर में, कि एक देश की एक चेतना होती है, और जो भी प्रधानमंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, बिजनेस लीडर होते हैं, टीचर होते हैं, जो भी होते हैं, वो सब एक चेतना से गवर्न होते हैं। तो इस समय देश में जो चेतना है
वो ये है कि बहुत हो गया, अब हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, अब हमें अपने दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। वो जमाने चले गए, शांति वगैरह की बात नहीं है अभी। तो ऐसी चेतना है, तो इस चेतना में आगे कैसे बढ़ेंगे, तो उसमें सब अगर एक साथ सुर से सुर मिलाएंगे तो उन्नति अच्छी होगी। और इसी के ऊपर अगर आर्गुमेंट चलते रहेंगे, डिस्कशन चलते रहेंगे, तो बड़ा नुकसान देश का हो जाएगा। ये इस पूरी किताब का सार है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड इनसाइट सर। आपने बताया कि ये जो जर्नी है बार्ट फिशर के साथ और इंडिया, यूएस और चाइना के बीच में जो ट्रेड रिलेशनशिप है, वो जो कंसेप्ट है, वो विचार है, कैसे फ्लोट हुआ। सर ये जानना चाहूंगा, जनरली आपकी जो भी किताब होती है करीबन 300 पेज के आसपास तो होती ही है, लेकिन स्पेशली अब इंडिया वेक्स की बात करें, मैंने भी ऑर्डर की थी और मैंने पढ़ना भी स्टार्ट कर दिया है। तो उस जो बुक है वो 500 पेज कंसिस्ट करती है, 500 पेज के साथ 25 चैप्टर्स, और टू माय सरप्राइज 800 से ज्यादा रेफरेंस सर। आज जहां पे स्कैर्सिटी, इंटेलेक्चुअल इनोवेशन का जो दुकाल है पूरे वर्ल्ड में, कि कॉपी पेस्टिंग जनरली कोई भी बुक लिख रहा है तो कॉपी पेस्ट ज्यादा होता है, जो अंदर से बात निकल के आती है वो कम देखने को मिलता है आजकल के ऑथर्स में। तो ये 800 रेफरेंसेस और इतना इनोवेशन, और आपने बताया कि कोरोना जब तक पैंडेमिक स्टार्ट नहीं हुआ था तब तक 300 पेज कुछ लिखे जा चुके थे। तो और लद्दाख कांड की भी आपने बात रखी, तो जो 200 पेज जो कंट्रीब्यूट करते हैं वो कोरोना और लद्दाख पे करते हैं, या उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि 200 पेज ऐड हो गए सर बुक के अंदर? वो सर आपसे जानना चाहूंगा। करीब 100 पेज जो है वो कोरोना के ऊपर डिस्कस करते हैं, क्योंकि हम कह रहे थे कि दुनिया बदलेगी, लेकिन दुनिया तो तत्काल इफेक्ट से बदल गई। जो काम धीरे धीरे होना चाहिए था वो एकदम हो गया। तो अब हम बात कर रहे थे कि इस व्यापार पर प्रतिबंध लगे, इस व्यापार पर छूट मिले, अब तो सभी चीजों पर प्रतिबंध लग गया। तो अब तो एक तरह से नई तरह से एक मौका मिला है। तो इस किताब का महत्व, कई बार तो ऐसा लगता है कि ये किताब जो है किसी अदृश्य शक्ति ने हमसे लिखवाई है, हम कौन होते हैं। और जहां तक जो 25 चैप्टर की 500 पेज की बात है, तो ये बात देखिए, एक तो कमेंट्री करना होता है कि ऐसा होना चाहिए, हम उस बात को नहीं मानते। हमारा ये मानना है कि कोई भी चीज जो है 10, 20, 50 साल के अंदर होती है, उसके परिणाम होते हैं, अपने एक अकस्मात से कुछ नहीं होता है। दूसरी बात क्या है कि इंपॉर्टेंट चीज ये नहीं है कि मैं क्या कह रहा हूं या आप क्या कह रहे हैं, इंपॉर्टेंट चीज है कि लोग क्या कह रहे हैं। तो अब जो भी कोई इस समय विचारक हैं, जो भी कोई पुराने लोग हैं, उन्होंने क्या कहा है, तो एक इन्वर्टेड कॉमा में अगर आप वो रेफरेंस डाल के बताएंगे तो तब बात की प्रामाणिकता बनती है। तो ये कारण है इसका कि इसमें मेहनत हुई है, और हर पेज के ऊपर कोई भी ऐसा तथ्य नहीं है जिसको हमने बाकायदा रेफरेंस नहीं करा है। तो इसलिए इस पुस्तक की प्रामाणिकता है। सर आपने जो बताया, आपने चेतना की बात की, आपने क्या कंट्रीब्यूट हो रहा है 500 पेज के ऊपर, आपने बताया कि हाउ कोरोना हैज अफेक्टेड द वर्ल्ड। तो आर यू रियली सीइंग कि जो कोरोना का जो पेंडेमिक हुआ है पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो इट्स इज लाइक अ टर्निंग पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड? जैसे हम स्पेनिश फ्लू की बात करें 1918 में, उसके बाद वर्ल्ड वॉर 1, उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2, तो that has been articulated as a turning point of the world economy और जो geopolitical strategy है पूरे वर्ल्ड की। तो आप देख रहे हैं कि ये कोरोना की वजह से ये पूरा टर्निंग पॉइंट, it will be a next kind of a turning point for the global economy and the socio economy? नीरव, मेरा ये मानना है कि ये एक टर्निंग पॉइंट ही नहीं है, खाली टर्न तो हो चुकी दुनिया, और ये एक सिविलाइजेशन का रीबूटिंग हो रही है। एक्चुअली रीबूटिंग हो रही है। देखिए, आप 3 बात अगर आप मुझसे पूछें कि कोरोना की वजह से क्या हुआ, अब जिनको कोरोना हुआ वो ठीक हो गए, वो तो एक अलग बात है, पर आप हम जैसे लोग जो लकी हैं, हमें कोरोना अभी तक नहीं हुआ। हालांकि साइंस ये कहता है कि सबको होएगा, अगले आने वाले 1 साल में हर एक को कोरोना होएगा। अब वो फ्लू की तरह निकल जाएगा या किसी को कुछ समस्या होगी, वो एक अलग बात है। तो 3 चीजें इस कोरोना के दौरान हुई।
एक तो ये कि लॉकआउट हो गया तो दुनिया थम गई। अब जो हर समय ट्रैवल टूर पे रहते थे लोग, वो पहली बार घर में आके बैठे, तो परिवार में दोबारा से बातचीत शुरू हुई और शुरू में झगड़े भी हुए, फिर उस झगड़ों में से कुछ कंप्रोमाइज भी हुए। तो एक तो जो परिवार की जो समस्याएं थी, व्यवस्था थी, वो थोड़ा लोगों ने अपनी फैमिली के साथ टाइम ज्यादा गुजारा इसमें, तो वो हुआ। दूसरा ये हुआ कि जो माइग्रेंट लेबर है, अब सूरत तो बहुत बड़ी एक व्यवस्था है, यहाँ अर्थव्यवस्था माइग्रेंट लेबर की है। तो जिस तरह से आपने अपने माइग्रेंट लेबर की को संभाला, मेरे ख्याल से बम्बई वाले नहीं संभाल पाए, दिल्ली वाले तो बिल्कुल नहीं संभाल पाए। तो ये एक समस्या निकल के आई कि जो माइग्रेंट लेबर हैं उनकी जो व्यवस्था है, उनकी जो दशा है, वो तो किसानों की दशा से भी ज्यादा खराब है। तो ये चीज निकल के आई। तीसरी चीज जो सबसे बड़ी निकल के आई कि अगर आप इंपोर्ट के बेसिस पे बिजनेस करते रहोगे, तो जैसे फार्मा का एक एग्जाम्पल है कि कोई भी दवाई बनाने में रॉ मटेरियल से एक्टिव जो इंग्रेडिएंट होता है उसके 8-10 स्टेप होते हैं। तो बड़ी बड़ी बिजनेस कंपनियां, अहमदाबाद, हैदराबाद, इन सब ने क्या करा कि बैलेंस शीट बनाने के लिए, अच्छी करने के लिए, वो 10 -10 से 1 तक की मगजमारी करने की बजाय -2 -3 की मंगाना शुरू कर दिया, और खाली उसकी पैकिंग और लास्ट की एक उसको गोली कैप्सूल बनाने का काम इंडिया में होना शुरू हो गया। तो फायदा सबका था उसके अंदर। लेकिन अब कोरोना की वजह से जब सप्लाई चेन ही बंद हो गई, जब शिप आने बंद हो गए, कंटेनर आने बंद हो गए, तो अब पैरासीटामोल कहाँ से बनेगी? तो ये जो एक रियलाइजेशन हुआ कि कल को कोई वक्त ऐसा आ जाए तो कैसे देश को ये सब काम करना पड़ेगा, तो ये रियलाइजेशन ऑलरेडी हो चुका है और ये तो काम हो चुके। अब इसमें आगे बढ़ के क्या कोल्ड वार होएगी, जैसे पहले रशिया और अमेरिका के बीच में दुनिया बटी हुई थी, क्या कल को चीन और अमेरिका के बीच में बढ़ जाएगी? क्या भारत जो है वो फिर दोबारा से गुटनिरपेक्ष देश की तरह सरवाइव कर पाएगा, या उसको भी खड़ा होना पड़ेगा? तो ये सब चीजें सवाल हैं, और उन सवालों के जवाब कोई बौद्धिक बात नहीं है। उन सवालों के जवाबों के ऊपर पूरे देश का भविष्य निर्भर करता है। तो हम लोग भी सुपर पावर बनेंगे या हम खाली बाजार बन के रह जाएंगे, ये हमारा भविष्य अब डिसाइड होगा। तो वो जो हमारा भविष्य जो डिसाइड होगा, तो जो ऑफिसर हैं, जो नेता हैं, वो सब एक चेतना के साथ काम करें। तो इसीलिए किताबें लिखी जाती हैं, इसीलिए किताबें पढ़ी जाती हैं, इसीलिए हम आप वार्तालाप कर रहे हैं आज। नहीं तो हम भी घर पे जाके टीवी देखने बैठ जाएंगे, कुछ तो आ रहा होगा वहां पे, उल्टा चश्मा सीधा चश्मा। तो उस सब से देश नहीं चलता है। देश चलता है बात करने से, चलता है संवाद बनाने से, चलता है चेतना बनाने से चलता है। मंदिर जाके क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस होती है वहां पे कि भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। तो इस ये पूरा संदर्भ इस परिप्रेक्ष्य में देखने की बात है। सर, काफी इंटरेस्टिंग सी बात निकल के आ रही है पूरे कन्वर्सेशन के अंदर कि जब हम यूएस इंडिया चाइना रिलेशनशिप की बात करते हैं तो एक बहुत ही अच्छा सा कोट मुझे याद आ रहा है जो कभी फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने कहा था, जो इंडिया यूएस के प्रेसिडेंट भी रह चुके थे। तो उसने जब पूरे यूएस के अंदर जब सोशल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, जब सोशल सिक्योरिटी कोड की जहाँ पे बात हो रही थी, तो काफी अच्छा एक यादगार कोट उन्होंने कहा था कि the test of our progress is not whether we add more to the abundance of those who have much, but it is whether we provide enough for those who have too little. तो जो आपने बात बताई इंडिया और चाइना और यूएस के बीच में, जो यूएस से जो बिजनेस मिल रहा था चाइना को, तो ऐसा लग रहा था कि जो एबंडेंस हो चुका था एक लेवल के ऊपर, वो सैचुरेशन पॉइंट के ऊपर आ चुका था। और ये सब चीजें कोरोना का जो पेंडेमिक हुआ उसमें थोड़ा रिफ्लेक्ट होके आई, बाहर निकल के आई, और उस वजह से इंडिया को थोड़ा फायदा हो सकता है। तो आपका क्या मानना है सर उसमें? नहीं, फायदा तो तब होगा ना जब नीरव मैं सुबह 5 बजे उठ जाऊंगा, लेकिन फिर मैं जूते पहन के घूमने जा रहा हूँ या नहीं, तो फायदा तो उस पर डिपेंड करेगा।
तो अगर मैं फिर एक चाय पी के सो जाऊंगा तो फायदा नहीं होगा। तो एक अवसर है और उस अवसर का फायदा उठाना है। और जो हमारा आज का नेतृत्व है, जो हमारे बिजनेस की चेतना है, हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ये वार्तालाप हो रहा है, ये किसी यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं हो रहा है, ये किसी पॉलिटिकल मंच से नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है कि आप लोगों में भी ये सब चेतना है। तो अब समय आ गया है कि जो भारत का 70-80 साल हमने अपने खराब कर दिए, कभी रशिया के साथ बड़े बड़े वो स्टेट फार्म बन गए, 5 वर्षीय योजना बन गई। अरे बिजनेस 5 वर्षीय योजना से थोड़ी होता है। बिजनेस में तो अगले 5 मिनट में क्या डील करनी है उस डिसीजन से बिजनेस आगे बढ़ता है। तो आज का जो जमाना है, जहाँ जो पैसे हैं, रिसोर्सेज हैं, वो सब इलेक्ट्रॉनिक स्पीड से बह रहे हैं। तो इस समय एक नई पीढ़ी को एक नई तरह से कमान संभालनी है और उसमें वो सब हो, ऐसा हमने इस किताब के अंदर सजेस्ट करा है। हमने 5-6 चीजें उसमें बताई हैं कि भाई ऐसा करो कि ये तुम्हारे पब्लिक सेक्टर की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। ITI है, उसने एक टेलीफोन नहीं बनाया आज तक, इसीलिए चाइना से सारे मोबाइल फोन आते हैं। आपके BHEL है, ये बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं जिसमें अरबों रुपए का निवेश हुआ हुआ है, इन सबको लॉकहीड मार्टिन, जनरल मोटर्स, GE, इन सब के स्टैंडर्ड तक ले जाओ। तो कैसे ले जाओगे कि उन कंपनियों की हिस्सेदारी इसके अंदर बनाओ कि वहां से इन्वेस्टमेंट भी आवे, वहां से टेक्नोलॉजी भी आवे। और सबसे बड़ी, देखिए, ये कहने से कि चाइना जो है वो बुरा है तो काम चलने वाला है नहीं। बाजार खुला हुआ है। चाइना का प्राइस है, एक टर्म होती है चाइना प्राइस, जो हमने इस किताब में एक्सप्लेन करी है कि आप कुछ भी बेच रहे हो वो उस चीज को 40% पे MRP पे लाके रख देते हैं बाजार में। तो अमेरिका उस चाइना प्राइस से compete नहीं कर सकता। वो तभी compete कर सकता है जब उसका सामान इंडिया में बने। हम उसको 38 रुपए में दे देंगे बना के। हम इस बात का, हमें भी अपने ऊपर भरोसा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए और हमें एक गवर्नमेंट की तरफ से पूरी ये सब रेड टेपिज्म नहीं चाहिए, ये ड्यूटी वो ड्यूटी। एक फ्री ट्रेड साइन कर लो, जो सामान आएगा वो ड्यूटी फ्री आएगा, जो सामान जाएगा वो ड्यूटी फ्री जाएगा। अगर आप सीरियस हो तो 10 साल तक आपको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा। तो ये बात हमने इसमें बहुत ही क्लियर शब्दों के अंदर कही है, क्योंकि चाइना ने ऐसे ही करा था। कोई भी बिजनेसमैन वो पीछे घूमने के, लीडरों के आगे पीछे घूमने के वो जमाने चले गए अभी। तो अब फास्ट चलने की जरूरत है और वो तभी चल सकते हैं जब ये जो आर्टिफिशियल कंट्रोल वगैरह है इनको हटा लिया जाए। थैंक यू वेरी मच सर। हमारे संजय भाई पंजाबी है जो स्टैंड अप कमेटी के चेयरमैन हैं, वो एक आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं और हम ये सेशन को काफी इंटरेक्टिव बनाना चाहते हैं ताकि आपकी जो विजडम है, आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को डिलिब्रेट की जाए। संजय भाई, व्हाट डू यू? नमस्ते। जब आपकी पुस्तक पब्लिशिंग में गई होगी तब के बाद जो कुछ वर्ल्ड के अंदर बदलाव आए हैं उसके कुछ सवालात के जवाब आपसे कुछ ढूंढने का प्रयास करने का ये नम्र प्रयास है कि जो परसों की US की पोजीशन है और FOMC की मीटिंग जब हुई थी उसके बाद जो एक निकल कर आया था कि वहाँ की जो 21 ट्रिलियन US डॉलर इकोनॉमी है वो करीबन 33% श्रिंक हो चुकी है। अगर हमारी इकोनॉमी 3 ट्रिलियन है तो उनकी इकोनॉमी ऑलरेडी 60 ट्रिलियन तो श्रिंक हो चुकी है। और हमारी कितनी हुई, हमारे पास कुछ आंकड़े नहीं है। चाइना के न तो कोई चाइना के आंकड़े हैं। और दूसरा, जो पैंडेमिक का असर इंडिया में लग रहा है कि 57,000 केसेस पर डे पर आज हम चल रहे हैं। सो फास्टेस्ट ग्रोइंग केसेस ऑफ कोरोना वायरस पूरे वर्ल्ड के अंदर हमारे यहाँ ही हो रहे हैं। तो हम कहाँ पर पहुंचेंगे वो भी हमें नहीं पता है। और दूसरा, जो US जो है वो इंडोनेशिया या तो ताइवान उसकी तरफ ज्यादा आकर्षित है। तो ये समझो के अंदर हमें कोई कंपनियां इंडिया की तरफ नजर आती नहीं दिख रही है। भले वो अगर एक बार के लिए कोई भी एक एग्जाम्पल भी आ जाए तो भी हम मानने के लिए तैयार हो जाए कि जो इंडिया वेक्स जो है, हम तो रेडी हैं काम करने के लिए, मेहनत करने के लिए। बट
मौका हमें सामने दिखाई नहीं दे रहा है। और दूसरा एक सवाल आपसे ये है कि टायर 2 सिटीज लाइक सूरत और जी एमएसएमई सेगमेंट के अंदर हमारी चैम्बर जो काम कर रही है उसमें कितने मौके, क्योंकि सबसे ज्यादा स्ट्रेस हमें एमएसएमई सेगमेंट पे दिख रहा है। जी काफी सारे छोटे छोटे बिजनेसमैन वाइप ऑफ हो जाएंगे अपने बिजनेस से, तो वो मान लो चाहते भी हैं और उनकी पावर भी यूज करना चाहते हैं, फिर भी वो बेबस हैं, जी ओनली इन टर्म्स ऑफ मनी बट इन टर्म्स ऑफ दैट डिमांड ऑल्सो। तो जी बारे में आपके कुछ ख्यालात हम आप हमें कुछ जी। मदद कराएं। संजय भाई, आपने बहुत सही जगह नब्ज के ऊपर हाथ रखा है कि एक एक बड़ी बड़ी बातें होती हैं, दूसरा एक कृति के अंदर कुछ काम करना होता है। तो अमेरिका की जो पूरी फाइल है, एफटीए बोलते हैं उसको, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, वो बहुत दिन से हमारे यहाँ रखी हुई है। ऐसा नहीं है कि कोई उसके ऊपर कोई समस्या है। अब उनके यहाँ इलेक्शन होने वाले हैं, हमारे यहाँ भी हमारे विरोधी दल जो हैं वो तो इलेक्शन के हिसाब से ही बोलते हैं, उनको अब कोई पॉलिसी वगैरह से मतलब नहीं है कुछ। जो शासन पक्ष का है उसका विरोध करना है, वो विरोध करने लायक हो या समर्थन करने लायक हो, वैसी संस्कृति हमारी अब खत्म हो गई। तो अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहता है, भारत की दो तीन हमारी अपनी उनके पीछे एक मुनासिब बात है, जैसे हमारे हम एग्रीकल्चर इंपोर्ट अपने यहाँ नहीं ला सकते क्योंकि हमारे किसानों की हालत अच्छी नहीं है। लेकिन हमारे जो एमएसएमई है उसके अंदर जो ये चाइना का सामान आता था, अगर हमें एक बोल्ड डिसीजन ले लें कि वो सामान नहीं आएगा, तो जब वो सामान नहीं आएगा तो हमारे उद्योग धंधे अपने आप ऊपर उठने शुरू हो जाएंगे। उनको थोड़ी कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। वो कैपिटल तब आएगा जब आप अपने थोड़े से जो कायदे कानून बना रखे हैं उनको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो एक तो कैपिटल आएगा, दूसरे जो अफ्रीका का मार्केट है, इमर्जिंग मार्केट है, ब्राजील का मार्केट है, ब्राजील का भी बहुत बड़ा रोल होने वाला है, 30 करोड़ लोग रहते हैं वहां पर भी। तो एक नया कॉन्सेप्ट निकल के भाई साहब आ रहा है, आपने नोट करा होगा, वो D10 का आ रहा है। जैसे G7 होता है, तो ये 7 जो कंट्री हैं जो IMF और वर्ल्ड बैंक के हिसाब से चलते हैं, अब इसमें साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की 3 डेमोक्रेसी को और जोड़ के और ये कि D10 की व्यवस्था बन रही है। और हमने इस किताब के अंदर बहुत डिटेल में डिस्कस किया है कि जो इंडोनेशिया है उसमें क्या हो रहा है। तो वहां पर अगर आज की तारीख में अमेरिका के पास अगर कोई उसका दोस्त है और जो काबिल दोस्त है, जो उसे आगे बढ़ा के ले जाएगा, वो खाली हिंदुस्तान है। और हिंदुस्तान को अमेरिका की जरूरत है, और अगर वो जरूरत है तो अमेरिका को भी हिंदुस्तान की उससे ज्यादा जरूरत है। हमने इसके अंदर एक एग्जाम्पल दिया है कि आज जो 3 बड़ी कंपनियां हैं अमेरिका की, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट और IBM, तीनों के CEO हमारे भारत के बंदे बैठे हुए हैं और पिछले 30-40 साल से काम कर रहे हैं वो वहां पर। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही वर्टिकली उनको इंटीग्रेट कर दिया है। तो दोनों लोगों के बीच में ऑलरेडी एक समझ है, काम करने का तरीका आता है। इंडिया के लोग जो अमेरिका में रहते हैं वो वाइब्रेंट हैं, वो जासूस नहीं है, वो उस देश के पार्ट हैं। वो उनकी पॉलिटिक्स के अंदर सीनेट का इलेक्शन लड़ते हैं, जीतते हैं, भाग लेते हैं, उस भागीदारी है उनकी उस देश के अंदर। तो अमेरिका की तरफ से पैसा आए, टेक्नोलॉजी आए और ये जो ट्रेड के जो कॉम्प्लिकेशन है ये दूर हो, तो मेरा ये मानना है कि थोड़ा वक्त लग सकता है, 6-7 महीने का, कुछ और कारणों से जो आप भी समझते हैं, लेकिन ये अवश्यम भावी है, ऐसा ही होगा और कोई तरीका नहीं है। किसी के ना चाहने से ऐसा नहीं होएगा साहब। तो सूरज निकल आया है तो धूप तो निकलेगी, आप अपनी आंखें कितनी देर तक बंद रखोगे सर? तो ऐसा मेरा मानना है सर। Thank you very much, Tiwari sir. I hope it suffices the concern of Sanjay bhai. सर, आपने ट्रेड और एग्रीमेंट की बात की, आपने इलेक्शन की बात की कि यूएस में इलेक्शन होने वाला है, बट एक अनफॉर्चुनेट बात जो देखने को मिल रही है कि पूरा वर्ल्ड यहाँ पे कोरोना पेंडेमिक से जूझ रहा है और पूरा जो वर्ल्ड के अंदर सभी कंट्रीज, सभी डेमोक्रेसीज जो है वो अपनी हेल्थ सिस्टम को एनहांस करने में लगी हैं, इससे फाइट करने में लगी है। और चाइना जो है, एक साइड से गलवान जैसे किस्से हो रहे हैं जहाँ पे चाइना
की जो पीपल लिबरेशन आर्मी है उसका इंट्रूजन हो रहा है, तो वो बौखलाए हुए हैं या इस वक्त के अंदर जहाँ पे उसको हेल्प करना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले वहां से हम मान रहे हैं कि वहां से स्टार्ट हुआ, और वो कॉन्स्पिरेसी में नहीं पढ़ना चाहेंगे, लेकिन आज वर्ल्ड को सबसे पहले हेल्प करने की बजाय पे आप यहाँ पे इंडिया में इंट्रूजन कर रहे हैं, बॉर्डर्स को अपने जो साम्यवाद की विचारधारा है उसको फैलाने में लग रहे हैं, तो वो क्या निकल के आ रही है बात, वो आपसे समझना चाहेंगे सर। वो तो नीरव आपके यहाँ ही शुरू हुई है। जो नमस्ते करी है आपने, तो वो नमस्ते की आवाज बड़ी दूर तक पहुंची, और तो वो आवाज दूर तक पहुंची। और दूसरा ये होता है कि तो जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। और कहीं ना कहीं जब एक कार के पीछे कुत्ता भागता है तो वो थोड़ी देर भागता है, उसके बाद कार आगे निकल जाती है, कुत्ता भौंकता रहता है। तो अब वक्त आ गया है कि ये सब से डरना नहीं है, ये सब पोस्चरिंग है और डरना नहीं है। अगर आपके 2 टैंक हैं तो मेरे 4 टैंक हैं, आपके 10,000 सैनिक हैं, मेरे भी 10,000 सैनिक खड़े हैं। गोली चलानी है चलाओ, हम भी चलाएंगे। आपने हमारे 20 जवान मारे, हमने आपके 41 जवान मारे, तो हम बिचटने वाले नहीं हैं। तो जो बहादुर आदमी होता है तो ये सब तो करना पड़ता है। जितने भी स्टार्टअप हैं उनके पास संजय भाई साहब इस बात को वाउच करेंगे कि एक पहले साल के अंदर एक डील आती है एक्विजिशन की कि भाई इतने पैसे ले लो, आप निकल जाओ, हम चला लेंगे उसको। तो कोई स्टार्टअप खड़ा रहता है, वो कह रहा है नहीं साहब अभी तो 3-4 साल में थोड़ा और इसमें मगजमारी करूंगा, उसके बाद आना आपको। तो इस समय इंडिया एक स्टार्टअप सुपर पावर है, और अगर ये 2-3 साल तक इसी तरह से हमने अपने आप को संभाले रखा बाजार में, हम बिके नहीं, तो फिर हम खुद सुपर पावर बन जाएंगे। सारा सार ये है किताब का। सर इसी बात को मैं स्ट्रेच करूंगा ज्यादा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, कि आपने जो बताया कि जो सिचुएशन है वो कुछ टाइम तक ऐसे ही रहेगी, तो आर वी गेटिंग इनटू अ काइंड ऑफ अ कोल्ड वॉर सिनेरियो जो रशिया और यूएस के बीच में सालों चला, और अभी मतलब इट्स लाइक यूएस और चाइना के बीच में अगेन इट विल बी लाइक अ कोल्ड वॉर सिचुएशन सर? मेरा ये मानना है कि कोल्ड वार इसलिए नहीं होगी वो, क्योंकि ना तो चाइना रशिया है और ना ही ये भी रशिया मिटा है नक्शे पे से, तो कोल्ड वार तो नहीं होगी। एक नई तरह का अलाइनमेंट होगा, क्योंकि ये भी देखना बहुत जरूरी है कि रशिया क्या स्टैंड लेता है। सबसे पहले जब हमारे यहाँ गढ़वान के अंदर प्रॉब्लम शुरू हुई तो हमारे रक्षा मंत्री वाशिंगटन डीसी नहीं गए, हमारे रक्षा मंत्री मॉस्को गए। तो जो हमारा इलाका है जिसको रीजन बोलते हैं, तो उस रीजन के अंदर क्या स्टेबिलिटी है। और चाइना की जो समस्या है वो उनका व्यापार है, और वो सारा जो उनका कारोबार है वो सी के थ्रू होता है। सारे उनके बड़े बड़े शहर जो हैं वो समुद्र के किनारे हैं। तो वहां जो प्रेशर बनना है, वहां जो क्वाड बनना है, जापान है, साउथ कोरिया है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया, चाइना, तो लड़ाई इस समय हिमालय पर्वत पे नहीं होगी। यहाँ तो हम ऊपर हैं, यहाँ वाला बियॉन्ड पॉइंट। आपने अगर उसका सामान रोक दिया, उसका बिजनेस आपने रोक दिया, तो वो कंट्री बौखलाया हुआ है। समझदारी है उसकी, बौखलाहट एंजॉय करना चाहिए, उस समय झगड़ा शुरू नहीं करना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत सही पॉलिसी डिसीजन लिया है, सख्ती भी दिखानी है लेकिन शांत भी रहना है, तो यही एक पॉलिसी है। सर आपने जो बताया, एक मैं रेफरेंस देना चाहूंगा, जब 2010 में जब ओबामा साहब प्रेसिडेंट थे यूएस के, तो तब उन्होंने कहा था कि इंडिया इज नॉट एन इमर्जिंग पावर और इमर्जिंग इकोनॉमी, इट हैज ऑलरेडी इमर्ज। और जो सिचुएशन है वो 2010 से लेके चेंज होती जा रही है, बट स्टिल नॉट रीच टू ऑप्टिमल लेवल। तो was it a kind of a premature statement in 2010 या अभी there is a long way to go? What's your take on that, sir? नहीं सर, अब लॉन्ग वे तो नहीं है, क्योंकि अब तो आईसीसीयू की बात आ चुकी है। अब तो सब वेंटिलेटर पे हैं इस समय, तो लॉन्ग टर्म अब कुछ नहीं है। अब तो आर पार की डिसीजन लेने हैं, आपको आगे बढ़ना है।
और इंडिया को FTA करना पड़ेगा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये 10 कंट्री के साथ करना पड़ेगा, एक से भी नहीं करना पड़ेगा, और चाइना की सप्लाई चेन को खत्म करना पड़ेगा। अब चाइना को सप्लाई चेन को खत्म करते समय चाइना का 26 बिलियन का गुजरात में इन्वेस्टमेंट है, तो उतना आसान तो नहीं है, ये सब कुछ कहने से तो नहीं हो जाएगा। तो पहली बार जो हाथ में आने वाली है, जो उस पावर को हैंडल करते हैं, वो कोई दिल्ली से या कहीं कोई मिनिस्टर के कहने से कुछ नहीं होने वाला है। अब जो काम करने वाले लोग हैं, बिजनेस चलाने वाले लोग हैं, वो जो डिसीजन लेंगे उसके हिसाब से इस देश का भविष्य का निर्माण होगा, ऐसा मेरा मानना है। राइट सर। सर अभी इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम मैं एक अभी रैपिड फायर क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन एंड आंसर करना चाहूंगा, जो समराइज करे कि बुक में जो कंटेक्स्ट है उसका जो क्रक्स है वो क्या है। तो रैपिड फायर में कुछ क्वेश्चन सर मैं आपको पूछने की इजाजत आपसे चाहूंगा, और उसके बाद आई ओपन द फ्लोर, जो हमारे अटेंडीज हैं उनके लिए मैं फ्लोर ओपन करूंगा। उनके कुछ सवाल है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके उन सवालों के ऊपर अपना पर्सपेक्टिव शेयर करें। तो सर सबसे पहला जो क्वेश्चन आ रहा है रैपिड फायर के अंदर, एक वर्ड में आपको बनाऊंगा और आप अपने पर्सपेक्टिव शेयर कीजिएगा जी। व्हाट डू यू मीन बाय, व्हाट इज योर मैसेज टू इंडिया सर? इंडिया, वी आर ए कंट्री ऑफ 1.3 बिलियन पीपल। तो जो हमारा रसूख होना चाहिए, जो हमारा एक पावर होनी चाहिए, वो पावर दिखानी है। ये इलेक्टोरल पॉलिटिक्स खत्म होनी पड़ेगी। एक 5 साल के लिए थोड़ा शांत हो जाए हमारे नेता और कुछ काम होने दें इस देश के अंदर, ये बहुत जरूरी है साहब। सर आपने ट्रेड और एग्रीमेंट की बात की, लेकिन सबसे जो क्रक्स निकल के आ रहा है, तो व्हाट डू यू परसीव बाय डिप्लोमेसी या डेमोक्रेसी, आप कैसे कंसीडर करते हैं सर? डिप्लोमेसी में एक बहुत अच्छा जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है कि उन्होंने एक बहुत काबिल आदमी को विदेश मंत्री बनाया हुआ है, जो भारत के अमेरिका में राजदूत रह चुके हैं और जो भारत के चीन में भी राजदूत रह चुके हैं, और वो एक किताब लिख रहे हैं जो अगले महीने बाजार में आ जाएगी। पहली बार किसी ने हिम्मत करके ये बात कही है कि 3 गलतियां हुई हमसे, क्योंकि कोई गलती नहीं मानता। प्रॉब्लम क्या है हमारे कंट्री में, गलती नहीं मानते। तो गलती नहीं मानोगे तो गलती सुधरेंगे कैसे? तो उन्होंने पहली बार उस किताब में ये बात कही है कि एक तो पार्टीशन ठीक नहीं हुआ, मैनेजमेंट ठीक नहीं हुआ पार्टीशन का, जिसकी वजह से पूरी एनर्जी, जो आज तक भी वो हमारा एनिमी है। ऐसा क्या पार्टीशन हुआ भाई? पार्टीशन का मतलब ये है कि अब पार्टीशन हो गया, अब तुम अपने रास्ते जाओ, हम अपने रास्ते जाएंगे। लेकिन यहाँ उल्टा हुआ, यहाँ पार्टीशन के बाद हम उसी में उलझे हुए हैं। दूसरा, हमने अपने बहुत सारे साल, 50-60 साल वो कंफ्यूजन में गुजार दिए कि आत्मनिर्भर बनना है, नहीं बनना है, ये इंपोर्ट होएगा, वो एक्सपोर्ट होएगा। इसी में हमारा पूरा चर्चा चलती रही। बहुत लेट हो गए हम अपने आप को डेवलप करने के अंदर। और तीसरा पॉइंट ये है कि हम जो है, हमारे पास कोई चारा नहीं है। अब चाइना एक सुपर पावर है, आप चाहें या ना चाहें वो आपको छोड़ने वाला नहीं है। ये आपकी चॉइस नहीं है कि आप कहेंगे सर आप उधर अलग रहो तो वो अलग रहेगा। वो आपका, उसको आपका मार्केट चाहिए। तो जो आज 50 बिलियन का डेफिसिट है, वो कल को 100 बिलियन का होएगा। अमेरिका के साथ तो उसमें 40 भी मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो सीधे सीधे अब आगे जो हमें बढ़ना है, वो जो काम करते हैं उनको काम करने दिया जाए। उसको, उसमें घोड़े को थोड़ी देर दौड़ने दो, ये तांगा नहीं है, अब ये रेस हो रही है, उसको दौड़ने दो थोड़ी देर। तो वही चाइना ने किया, वही अमेरिका ने किया, वही हमें भी करना पड़ेगा। जी सर, थैंक यू। अभी सर जो पूरे वर्ल्ड के रिनाउंड इकोनॉमिस्ट हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स थियरीज रिलीज करते हैं और इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज भी लेके जाते हैं, लेकिन आपको अगर पूछा जाए सिंपल भाषा में, व्हाट डू यू पर्सनली मीन बाय इकोनॉमी सर? सर इकोनॉमी में मतलब यह है कि जो, जैसा आपने थोड़ी देर पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट के बारे में बताया था कि कितने लोग कितने अमीर हैं। अच्छी बात है, हमारे यहाँ भी 300-400 बिलियनर हैं। लेकिन पहले जमाने में
जो अमीर लोग होते थे वो कुछ स्कूल बनवाते थे, धर्मशालाएं बनवाते थे, प्याऊ बनवाते थे, अस्पताल बनवाते थे। आजकल अमीर लोग ऐसा कुछ करते नहीं है। तो और अगर अस्पताल बनवाते भी हैं तो ऐसा बनवाते हैं कि उसके अंदर 50,000 रुपया तो बेड चार्ज होता है 1 लाख का। गरीब आदमी का तो उसमें भला होता नहीं है। तो इकोनॉमिक्स के अंदर जो सबके सबके, अब जैसे मोदी जी ने 2 बातें कही हैं, और एक यहाँ मैं एक बात छूट गई थी मेरे से कि जी एक हमारा जो लीडर है उसने पहले ये कहा कि स्वच्छ भारत होना चाहिए, उसके बाद उसने ये कहा आधार कार्ड होना चाहिए, उसके बाद डिजिटल वे में सब्सिडी जानी चाहिए। तो तैयारियां पूरी हैं। तो अब पहली बार जब वो कहते हैं कि आत्मनिर्भर होना चाहिए, तो मुझे तो उस आदमी की बात पर भरोसा है कि उसको पता है आत्मनिर्भर होना क्या मतलब होता है। और जब वो आत्मनिर्भर होगा, जब इन्वेस्टमेंट आएगा, जब टेक्नोलॉजी आएगी, तो जॉब बनेंगे। देखिए एक छोटी सी फैक्ट्री खुलती है तो सामने चाय का खोखा खुल जाता है, 2 ऑटो आके खड़े हो जाते हैं, 4 भिखारी भीख मांगने लगते हैं। तो डेवलपमेंट इस तरह से होता है। डेवलपमेंट डील करने से नहीं होता, डेवलपमेंट काम करने से होता है। तो इंडिया में अब आगे आने वाले 3-4 साल में काम होगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है सर। सर, आपने आत्मनिर्भर भारत की बात की, तो आत्मरक्षा के ऊपर आपका क्या ख्याल है सर? सर मुझे तो कोई कमी दिखाई नहीं देती उसके अंदर। और कई बार ऐसा होता है कि भूत आया तो जब फिर लाइट जला के लाठी लेके खड़े होना पड़ता है, लाओ भी कहाँ है भूत। तो चाइना का भी जो ये हवा है, अगर उसको कोई भी हवा को ठीक कर सकता है तो वो इंडिया ही कर सकता है। तो अभी हमारा टाइम आ गया है कि पड़ोस में ऐसे नहीं रहा जाता, या तो शांति से रहो। लेकिन अगर आप रोजाना हमारे कपड़े उठा के ले गए, हमारे ऊपर ये कूड़ा फेंक दिया, ये सब काम चलेंगे तो फिर एक दिन तो उसके साथ सटाना पड़ता है। जो करेक्ट वर्ड है सल्टाना है, तो चाइना के साथ इंडिया को सल्टाना पड़ेगा। ये भाई देखो, डिसाइड कर लो कैसे रहना है आगे। तो जी सर। आगे सर, आपने जो पूरे बुक का अगर क्रक्स निकाल के हम बात करें, और जहां तक बात है इंडिया और यूएस के संबंधों की, तो हम काफी एक वर्ड न्यूज में सुनते हैं और बज़वर्ड हो चुका है कि बायलैटरल टॉक हो रहा है, बायलैटरल रिलेशनशिप आगे बढ़ रही है। तो व्हाट डू यू मीन बाय, और स्पेशली इंडिया और यूएस के कंटेक्स्ट में ये बायलैटरल टॉक और बायलैटरल जो एग्रीमेंट्स, ट्रेड्स की बात है, तो कहाँ तक सर ये आप इसको ऑप्टिमिस्टिकली देख रहे हैं सर? देखिए अमेरिका और इंडिया जो है वो दोनों, उनके बीच में बाइलेटरल की कोई बात ही नहीं है। वो दोनों एक से कंट्री हैं, और उसमें ये प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए थी एक्चुअली। हमारे कितने सारे इंडियंस अमेरिका में रहते हैं, फ्लरिश हो रहे हैं। अगर वीसा के रूल बनते हैं तो 2 महीने के बाद इंडिया के लिए अलग से वेवर हो जाता है। उनकी भी अपने प्रॉब्लम्स हैं, उनके, वो हमारे बिना नहीं रह सकते, हम उनके बिना नहीं रह सकते। तो अब इसको जरूरी है कि इस बात को ओपनली डिक्लेयर कर दिया जाए और साथ में काम करना शुरू कर। थोड़ा अहंकार है। तो ये जो किताब है जिसमें एक भारतीय ने एक अमेरिकन के साथ किताब लिखी है, तो मेरे ख्याल से हमने पहली शुरुआत करी है, वरना ऐसी किताबें नहीं होती हैं। हम अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान समझते हैं, वो लोग भी अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान समझते हैं। तो कम से कम दोनों लोगों ने मिलकर एक 500 पेज की किताब लिखी, तो मैं इसको एक शुभ संकेत मानता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। अगर आपकी सर परमिशन हो तो हमारे जो अटेंडीज हैं वो काफी, उनके मन में सवालात हैं और आपसे जी 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 आपका पर्सपेक्टिव जानना चाहते हैं। तो जी एक हमारे दीपेश काछड़िया जी हैं जो पूछ रहे हैं कि अभी 2 दिन पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नई, हमारी गवर्नमेंट एजुकेशन पॉलिसी नई लाई है, जो काफी सालों बाद आई है और काफी सालों से ड्यू थी। और हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी है उनका नाम भी चेंज होकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन किया है। तो ये जो हमारा अपकमिंग वे फॉरवर्ड है उसमें ये कैसे हेल्प करेगी ये नई पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, स्पेशली एजुकेशन पॉलिसी की हम बात करें तो सर? देखिए मैं तो पिछले 2 दिन में मुझे आ, आ, मेरा मानना क्या है कि मैं अपनी ओपिनियन देने की बजाय बाकी लोग क्या कह रहे हैं उसको सुनना और समझना पसंद करता हूँ। तो शशि थरूर साहब ने तारीफ करी है, कैलाश सत्यार्थी साहब ने तारीफ करी है। हाँ, वो ये कह रहे हैं कि इंटेंशन तो है, अब होगा या नहीं होगा। अरे भैया इंटेंशन तो है कम से कम। तो मैकाले वाली तो व्यवस्था चेंज होगी। अब भारत के बच्चों को एक जो तरीका है, अगर आपको यूएस में जाके करना है तो जहां उनका सिस्टम है 4 साल की ग्रेजुएशन का, आपके यहाँ भी वही होना चाहिए।
तो एक सीमलेस हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से एक शुभ संकेत है, और इसके ऊपर अभी तक कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं आई है कि ये गलत है या ये नहीं होना चाहिए था। और शिक्षा जब तक चेंज नहीं होगी, हेल्थ केयर जब तक चेंज नहीं होगी, बिजनेस जब तक आप ओपन नहीं करेंगे, तो देश कैसे चेंज होएगा? तो देश तो इसी तरह से चेंज होएगा। तो अच्छी बात मुझे क्या लग रही है कि दो काम, एक तो जो आयुष्मान भारत है जिसमें 50 करोड़ लोगों का हेल्थ इंश्योरेंस है, अगर ये ठीक तरह से इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, अगर किसान की जो आमदनी है वो 2022 तक दुगनी कर दी जाए जो कहा गया है, और हर भारतीय परिवार के सर पे एक मकान हो, तो ये तीन चीज अगर आप इम्प्लीमेंट कर देंगे तो भारत तो सुपर पावर बन ही गया, उसको कौन रोकने वाला है? अब लेकिन आप जो कह रहे हैं वो कर नहीं पा रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि जो हमारा वर्तमान नेतृत्व है अभी तक उसका ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि जो ये कहा है वो करके दिखाया है, तो ये भी करके दिखाएंगे, मेरा अपना ऐसा मानना है। सर, आपने जो बात कही, अगर इंडिया में ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, जितनी भी कंपनीज है, करीबन 15 लाख कंपनीज इंडिया में है, तो 90% ऑफ कंपनीज बिलोंग्स टू द एमएसएमई सेक्टर। तो एमएसएमई सेक्टर का इंडिया के जीडीपी में, इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काफी ज्यादा योगदान रहा है और आगे भी रहेगा। तो जो पेंडेमिक की सिचुएशन आई है और सबसे एडवर्स अगर हिट हुई है तो वो भी एमएसएमई सेक्टर ही हुई है, क्योंकि लिक्विडिटी क्रंच, ऑपरेशन कॉस्ट कैसे रिड्यूस करना है, तो काफी दिक्कतें हो रही है। तो एमएसएमई सेक्टर में आप क्या देख रहे हैं और कैसे वो रिवाइव करेगा, और उसमें आपका क्या सोचना है कि अगर इंडिया को अगर सुपर पावर बनाना है तो एमएसएमई सेक्टर को कैसे हम हैंड होल्ड करके एक लेवल पे पहुंचा सकते हैं? नहीं, इंडिया सुपर पावर एमएसएमई के थ्रू ही बनेगा, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा देश है। हमें कोई यहाँ सेमी कंडक्टर की फाउंड्री लगा के या लॉकहीड मार्टिन बना के यहाँ पर अगर तो हमारे ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। तो जो टेक्नोलॉजी और जो इन्वेस्टमेंट है उस पे एक 10 साल के लिए सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को हटा दो, सबको फ्री हैंड दो, और तब वो एक तरह से ऊपर उठ के आएंगे। ऐसा मेरा पर्सनल विचार है। संजय जी और बाकी लोग ज्यादा जानते हैं इस बात को। थोड़ा नहीं चलने वाला, थोड़ी फ्रीडम देनी पड़ेगी कि जब एक आदमी तभी दूर तक भाग सकता है जब उस तो पीछे चाइना आ रहा है और हमें आगे निकल के अपनी जान बचानी है, इस भावना के साथ काम करना है। जी, आपने बताया अपने डेलिब्रेशंस के अंदर कि इंडिया इज बिकमिंग अ न्यू स्टार्टअप हब। तो जहाँ पे यूथ डेवलपमेंट की बात है और एजुकेशन पॉलिसी की आपने बात बताई, तो जो स्किल डेवलपमेंट जो इंडिया में हो रहा है, तो उसमें आप उसका रोल जो है स्किल डेवलपमेंट का, स्पेशली इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्टार्टअप, वो आप क्या देख रहे हैं, और स्किल डेवलपमेंट कितना जरूरी है कोई भी कंट्री की इकोनॉमी को एक लेवल पे पहुंचाने के लिए, वो आपसे समझना चाहेंगे? आपकी जो डायमंड इंडस्ट्री है वो स्किल डेवलपमेंट का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। तो स्किल डेवलपमेंट वो अप्रेंटिस और मास्टर के लेवल के अलावा नहीं सीख सकता मैं। तो स्किल डेवलपमेंट करके आती है, उसके लिए एक उस्ताद चाहिए होता है, उसके लिए एक शागिर्द किसी का बनना पड़ता है। और डायमंड जो इंडस्ट्री है वो उसकी बहुत बड़ी एग्जाम्पल है, किस तरह से लोग आते हैं और किस तरह से लोग काम सीखते हैं। तो ये जो स्किल डेवलपमेंट है, इसके अलग इंस्टीट्यूट बने हैं, इसका ये सर्टिफिकेट हो, ये हो, इस तरह से नहीं चलने वाला है। रिवाइव करना पड़ेगा। और मैं किसी को कोई काम क्यों सिखाऊं, तो मुझे क्या फायदा है उसका? तो जो हमारे जानकार लोग हैं, आज ऐसी हालत हो गई है कि घर में अगर मैं एक प्लम्बर को बुलाता हूं तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो उसको फिक्स करके चला जाएगा या उसमें फिर भी पानी निकलता रहेगा। तो ये सिचुएशन ठीक नहीं है।
और हुनर जो है वो एक अगर चीज जिसमें ये गवर्नमेंट के अंदर ठीक से काम नहीं हुआ है तो वो इस फील्ड में नहीं हुआ है। तो इसमें जरूरी है कि गवर्नमेंट इसमें ज्यादा दखलंदाजी ना करके उद्योगों के ऊपर छोड़ दे कि वो अपने हिसाब से जो स्किल जरूरी हो उसको वो अपने काम में कारीगरों को दें उसके लिए, और उसके लिए इंसेंटिव होना चाहिए, उसके लिए टैक्स कट्स होने चाहिए, उसके ऊपर दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए सरकार की तरफ से। सर एक क्वेश्चन निकल के आ रहा है, प्लीज प्लीज संजय भाई। सो वही बात को आगे बढ़ाते हुए हमारे बहुत सारे कंसेप्ट आपके बातों से क्लियर हो रहे हैं और जो आपका विजडम है वो कुछ हमें काम लग सकता है। तो मेरे दो क्वेश्चन है कि हमारे इंटेंशन तो क्लियर है जैसे आपने बताया, और वो एक्शंस के तौर पर लेने की भी कोशिश की जा रही है, जैसे इंडिया हो या स्किल इंडिया हो या न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो, पर जो इंटरनेशनल इंडाइसेस जो है उसको क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं? कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अभी भी हम 63rd रैंक पर खड़े हैं। करप्शन के लिए परसेप्शन इंडेक्स के अंदर अभी भी हम आउट ऑफ 180 कंट्रीज के अंदर हम 80 नंबर पर हम खड़े हैं। तो अगर हमारे इंटेंशन सही है, एक्शन भी ले रहे हैं, तो वर्ल्ड उसको रिकॉग्नाइज क्यों नहीं कर पा रहा है? नंबर 1। नंबर 2, ये जो स्टार्टअप्स की आपने बात की कि वी विल बी द स्टार्टअप हब ऑफ इंडिया, आई डू आल्सो बिलीव दैट। अभी हमारे पास करीबन 24 यूनिकॉर्न्स है इंडिया के अंदर। नन ऑफ देम आर बीन फंडेड बाय इंडियन इन्वेस्टर्स। आई मीन ऑल आर बीन, मेजॉरिटी ऑफ देम आर फंडेड बाय चाइनीज इन्वेस्टर्स। तो पेटीएम है, बिग बास्केट है, बाइजू है, जोमेटो, स्विगी, ओला, उड़ान, ये जितनी भी हैं वो सबके सब फंडेड बाय चाइनीज हैं। तो गवर्नमेंट की कोई ऐसी पॉलिसी के जिससे हमें एक्शन पे कन्वर्ट होता दिखे, वो हमें क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? एक पॉइंट। नहीं भाई साहब जी जी। तीसरा सिर्फ एक ये मुद्दा है कि एक गवर्नमेंट के कुछ स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक 5.36% आर अनएम्प्लॉयड राइट नाउ, एंड unorganized study whatever they say that more than 12.5 crore people are unemployed right now, and due to pandemic this figure can touch more than 25 crore. So it's a big number, and what will be the employment for them if that अभी moratorium खत्म होगा? तो उसकी रिपोर्ट जो शक्तिकांत दासा ने जो भी दी है वो भी ये बता रही है कि टॉप की 5 बैंक उलट सकती है, जो उनके रिपोर्ट में रिजर्व बैंक के गवर्नर ने जो बताया है। या मॉरेटोरियम खत्म होने के बाद काफी सारे लोगों ने मोबाइल नंबर चेंज कर दिए हैं, ब्लॉक कर दिए हैं, तो उनका एनपीए के बढ़ने की संभावना 8% से लेकर 13% तक की जा सकती है। तो इन सब हालात के अंदर हमें कोई आशा की, हमारा इंटेंशन से ही हम सब हमारे प्रधानमंत्री और गवर्नमेंट के साथ काम करना चाहते हैं और मेहनत करना चाहते हैं। अगर किसी ने बताया था कि 12 घंटे काम करते तो हम 15 घंटे काम करना चाहेंगे इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए, तो वो हमारा कंट्रीब्यूशन रहेगा। पर वर्ल्ड उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, तो उससे एक आशा की किरण है वो थोड़ी निराशा में कन्वर्ट होती नजर आती है। तो नहीं भाई साहब, मेरा मानना ये है कि देखिए आशा जो है वो सबसे बड़ी बात क्या होती है कि एक मन के अंदर विश्वास होना चाहिए। तो मैं नहीं चाहता कि इंडिया को ज्यादा परेशान होना चाहिए कि कौन सी रैंकिंग है, क्या रैंकिंग है। अंदर से कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि मेरे को अब बहुत हो गया, मेरे को आगे बढ़ना है। एक तो बात ये है। दूसरी बात, ये जो एनपीए वगैरह का है, ये थोड़ा खुलना पड़ेगा। ये सब थोड़ा इसको टैक्स फ्री एक मदद करनी पड़ेगी। आप हर तरह से आप अगर घोड़े को पकड़ते रहेंगे तो बारात का घोड़ा बन के रह जाएगा वो। आप वो रेस में दौड़ाना है तो खुला छोड़ना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो बहुत प्रैक्टिकल आदमी है, उनको पता है क्या करना है, थोड़ी किस चीज को कब करना है, वो थोड़ा टाइम टेबल में उनको ज्यादा पता होता है सेंसिटिविटीज का हमारे से। लेकिन मेरे मन में ये पूरा विश्वास है कि इस बार जो इंडिया जागा है तो वो दोबारा सोने वाला नहीं है सर। वो अभी तो हम लोग आगे बढ़ेंगे सर। Thank you very much for your kind insights, Tiwari sir. In the interest of time, I'll request and hand over the floor to Sanjay Bhai Punjabi. अगर कुछ questions है, otherwise we may conclude the session. Thank you so much. And
विजडम से भरपूर आज की जो टॉक थी वो उससे इंडस्ट्री को काफी फायदा हुआ ऐसा हमें लग रहा है। और हमारे बीच उपस्थित जो लोग जूम पर भी थे और यूट्यूब के ऊपर भी ये पूरा सेशन लाइव चल रहा है, तो वहां पर भी काफी सारे दर्शक हमें आज देख रहे हैं। और आपके प्रवचन से और आपके विचार से हमें एक नई प्रेरणा मिली है, एक नई आशा की किरण जागी और एक नया उत्साह भी शायद हम सबके अंदर थोड़ा भरा हुआ है। थोड़ी निराशा थी वो निकलने शुरू हुई है। और आप जैसे वक्ता के साथ और थिंकर के साथ हम चैम्बर हमेशा के लिए जुड़ना चाहेगा और आपके विचार कुछ समय अंतर आपके साथ मिलकर कुछ बातचीत करने का मौका मिलेगा। ये चैम्बर का जरूर सद्भाग्य ही रहेगा। और मैं दर्शकों को सिर्फ बताना ये चाहूंगा बिफोर आई इनवाइट बिजल जरीवाला जी फॉर अ वोट ऑफ थैंक्स, टुमारो वी हैव अ सिमिलर सेशन कि अगर आज से आज के वक्ता के विचार से अगर आप प्रभावित हुए हैं तो कल का सेशन आप सुबह को 11 बजे भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसके अंदर हम नेवर बेट अगेंस्ट इंडिया। अगर स्टॉक मार्केट में काम करना है तो इंडिया के अगेंस्ट में कभी भी मंदी की बात मत कीजिएगा। आगे हमारे सोने की चिड़िया आने वाली है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। एंड शाम को 5 बजे हम वही पोस्ट कोरोना जो हमारा है उसके ऊपर एक टॉपिक लेकर आ रहे हैं, लीडर्स एट द पीक। कि अगर हम अभी प्रोएक्टिव बनकर बिजनेसमैन काम करेंगे तो हम जरूर आगे की लड़ाई सर्व कर पाएंगे और सुपर पावर की तरफ जाएंगे। और 4 अगस्त को DGVCL के साथ की कुछ बातें फेस टू फेस करने के लिए शाम को 5 बजे 4 अगस्त को आप सभी को आमंत्रण है कि इस वेबिनार के अंदर आप जरूर पधारिए। और अभी मैं विनती करूंगा बिजल जरीवाला जी जो यंग लीडर ऑफ और कन्वीनर ऑफ द इवेंट सेल भी हैं, उनको आभार दर्शन करने के लिए मैं उनको विनती करूंगा। थैंक यू संजय भाई। आज के हमारे वेबिनार के जो सर प्रोफेसर सर अरुण भाई तिवारी जी जो इतने नॉलेजेबल है कि हमारे लिए एक अवभाग्य है कि आज अरुण भाई हमारे साथ जुड़े हैं। श्री नीरव भाई मंदिर जी जो हमारे हर एक वेबिनार में हमारे कायम के फ्रेंड फिलोसोफर और गाइड रहे ऐसे नीरव भाई मंदिर जी, हमारे संजय भाई पंजाबी जी और हमारे सभी श्रोता मित्रों। सर आज आपने जो MSME सूरत जो MSME हब है और उनके लिए जो आपने आशा की किरण है हमारे लिए जो प्रदर्शित की है, जो आशा की किरण है हमको दिखाई है, उसके लिए सर हम आपको पूरे सूरत और पूरे साउथ गुजरात की इंडस्ट्री की ओर से हम आपके शुक्रगुजार हैं। और सर एक्सपोर्ट की जो आपने बात की कि सूरत से जो सूरत एक्सपोर्ट का हब बन सकता है और एक्सपोर्ट में जो पॉसिबिलिटी है उनके लिए जो आपने बात की सर उसके लिए भी हम आपके शुक्रगुजार हैं, क्योंकि सूरत की इंडस्ट्री काफी स्ट्रगल कर रही है और उभरने के लिए सर एक आशा की किरण आपने दी है, उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। हमारी जो स्ट्रेंथ है और हमारा जो भारत का एग्रेशन है उसके लिए जो आपने बात की है सर उसके लिए भी हम आपके शुक्रगुजार हैं। और आज के जो बात है उसके लिए हमने हमारे गुजराती में एक अच्छी बात की है कि एक ज छे श्रद्धा एक ज छे विश्वास, આપણું યુદ્ધ આપણો વિજય। નથી ગમ મને વર્તમાન રાત્રિના અંધકારનો, નથી ગમ મને વર્તમાન રાત્રિના અંધકારનો, હાલ અંધેરું ભલે પણ પછી તો પ્રકાશ જ પ્રકાશ છે। સર આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર નીરવભાઈ, અરુણ સર અને સંજયભાઈ અને ઉપસ્થિત સર્વે શ્રોતા મિત્રોનો આ તકે સદન ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રી द्वारा आयोजित आज के वेबिनार में हम आपके शुक्रगुजार हैं। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू भाई साहब, बात करके बहुत अच्छा लगा। और इस वक्त के दौरान हम जरूर दर्शकों को बताना चाहिए कि हमारे साथ उपस्थित चैम्बर के कुछ पास्ट प्रेसिडेंट भी थे। प्रेम शारदा साहब हमारे बीच में उपस्थित थे जो पूर्व वाइस चांसलर ऑफ VNSU यूनिवर्सिटी के थे। कमलेश भाई याग्निक हमारे बीच उपस्थित थे। डॉक्टर अश्विन देसाई हमारे साथ उपस्थित हैं और काफी सारे सूरत के इंडस्ट्रियलिस्ट इस प्रोग्राम के अंदर भी उपस्थित थे। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक्स फॉर योर टाइम सर। टेक केयर। थैंक यू नीरव।